So, my name is Qasim, and this is my group mate Amtul Hadi, and our project is topological quantum computing. Specifically, it's on non-abelian topological order, ZX calculus, and quantum computing. Our supervisor is from physics department. She's esteemed Dr. Aisha Halik, and her work is on quantum computing. Okay, first of all, our abstract. So, what did we do in this whole project? Well, the idea was to combine this field, which is topological quantum computing, and describe it using different concepts from mathematics and physics. So, first up, we have measurement-based quantum computing, and second is ZX calculus. So, we combine both of these approaches to quantum theory, and you use these to construct long-range entangled states. One of these is the GSZ state, and this is a state which is a feature of topological order. And finally, we apply these constructions computationally to calculate Jones polynomial, which is something called a topological invariant for links. And links are kind of like knots, and this is a problem of exponential complexity, but using topological quantum computing, we can do this in polynomial time. That means that we can do it very quickly. So first of all, topological quantum computing. What's topology? Topology is a branch of mathematics that studies the properties of objects preserved under continuous deformations. So this is an image of a torus. It's a donut-shaped object, but notice that if you bend this or deform it, as long as you don't cut it, it's always going to have this hole. And this is a fundamental topological property of this object. It's called as genus. And this thing will always be preserved. Similarly, if you have a sphere, notice that if you bend this and deform this, you can even deform it into the shape of a cow. But both of these things, they are topologically equivalent. So next up is quantum computing. The thing about quantum computing is that it uses concepts like superposition and entanglement to solve computational problems. So you can kind of like think of this as doing superposition is like doing many things, but at the same time. So it's kind of like parallel computing, which is which allows us to do computations very quickly. And entanglement is essentially connecting particles which are very far away, and these correlations allow us to solve very difficult problems much quickly. But the main limitation of these things is that they are extremely fragile and they're sensitive to noise. So this is one of the main reasons why you don't have a quantum computer, why you don't have a quantum computer in your phone or something. And the key idea of topological quantum computing is to store quantum information and perform computations using topology. So we use things which are only sensitive to their topology and not sensitive to any other noise. So this is the advantage we get, and the advances in this recent field is that many companies, like currently if you look at 2023 report from 2023 from Microsoft and Google, they're putting billions in this research, and they think that this is the only way that quantum computing is going to become scalable. And this next is braid group. So this is a non-abelian group. That means that it's a non-commutative group. Its operation is just composition of braids, and this is what I'm going to show you visually what a braid group corresponds to. So if you look at the first one, this is called the braid sigma 1. It represents the first strand going over the second one while keeping these endpoints fixed. And notice that this is different from the second braid, which is second strand going over the first one. And notice that we can compose these. So the group operation here is that we take these 4 strands and we line them up side by side, and notice what braid we get. So in this case, you notice that if you connect this one with this one, and you can straighten it out, and similarly if you connect this one with this one, you can straighten it out and you get a precise identity braid. So these are the kind of generators that this group has. And the connection with topological quantum computing is that it's unitary representations of this group, and representations, you can kind of think of this as associating matrices to these braids. And whenever we have matrices, we essentially are able to do quantum computing. Next up is toric code. So
Toric code is both an error correcting code. That means that it can correct errors, and it's actually the most efficient quantum error correcting code in one sense. And also, it's a topological phase of matter. That means that its properties are preserved under topology. And the main feature behind this Toric code is that it involves placing qubits on a square lattice, but with periodic boundary conditions. So you can kind of visualize this using this paper. So if I have this, so notice if I place qubits on this sheet, and if I connect these left and right points, I get a cylinder, right? But if I further attach these tops and bottom parts, I get a torus. I mean, I can't do it precisely, but hopefully you get the idea that this shape will precisely be a torus, and this is why it's called the toric code. That you are placing qubits on a square lattice allows us to look at the square lattice of qubits placed on a higher dimensional surface while only working in like 2 dimensions. And this is a okay. So the next part is direct calculus, and the rest will be explained by my group member. Okay, so next let us move on to ZX calculus. Using ZX calculus, we actually constructed LRE states through this. So here we have certain gates. For instance, we have studied Z gate and NOT gate in quantum computing, but we can actually represent it using different diagrams. For instance, if here we take alpha equal to pi, we get Z gate. And similarly, for instance, if we're gonna take alpha equal to pi over here, we'll get NOT gate. And so we have certain rules in quantum computing, and similarly we can convert those rules into diagrams, and we can actually represent them visually. So for instance, here we have 2 spiders, and spiders basically are just that we have certain inputs and we have certain outputs. So if we have 2 phases, say alpha and beta, we're going to combine them, and then we can perform this operation. And similarly, for instance, if we have Hadamard gate, and if it will pass through this phase gate, so we'll get another Z gate with alpha phase, and these are Hadamard gates. And similarly, for instance, if we have a simple NOT gate, it's just equivalent to with single input and single output, it's just equivalent to an identity operator. And similarly, for instance, if we have 2 Hadamard gate, and we know that in quantum computing, H square is equal to identity. So similarly, over here we have H square is equal to identity operator. Now let us move on to novel contributions. So first, our goal was to evaluate Jones polynomial for Borman rings. So what is Jones polynomial? It is essentially an topological invariant. For example, we have a Kaufman bracket invariant, but Kaufman bracket invariant is not basically it is not invariant under all the Redmister moves. It is not invariant under first Redmister move, which is about if we untwist the string, we just get a simple string. The Jones polynomial is the strongest invariant, and we actually evaluated Jones polynomial for different rings as well. And secondly, we constructed LR states using ZX calculus, as I told earlier. And our third goal was to review D4 topological order. And for instance, over here we can see that we are giving argument like for 0.6 or 0.8 and so on. And the restriction of this algorithm is that we can evaluate Jones polynomial only at kth roots of unity. So we have evaluated over here, and these are inputs and these are outputs. So for every t, we have evaluated Jones polynomial, and this is the imaginary part, and this is the real part. And next, let us move on to applications. The first application is rapid medicine development. So we can, for instance, talk about drugs discovery. Using quantum computing, we can run more complex models in order to detect residues of drugs or drugs constituents, and we can essentially accelerate our process of medication. And second, for instance, we have weather forecasting, and same we have code breaking, and the last one we have quantum natural language processing. So let us move on to our future goals. Our future goal is just we're going to compare Fibonacci and Ising anyons. And the second goal is we're going to compare abelian and non-abelian order as error correcting codes. Yeah, that's it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sayyida Zainab Fatma, and I'm here with my group mates Sadaf Amir. So basically, our final year project is about machine learning applied to the coronary artery disease. So हमने अपने प्रोजेक्ट में 4 डोमेन्स को कंबाइन किया हुआ है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मेडिकल एंड मशीन लर्निंग एज वेल. सो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि वी वांटेड टू स्टडी द हीमोडायनेमिक्स ऑफ द आर्टरीज व्हिच आर
which are highly at risk to the स्टेरोसिस, तो हम उसको विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग उसको हम देखना चाह रहे हैं कि वो क्या हमें रिजल्ट्स शो करती हैं. सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली ये है कि हम एक हार्ट में जो एक डिसीज आर्टरी है उसको बेसिकली हम ये यहाँ पे जैसे अगर आपको ये पिक्चर पे मतलब नज़र भी आ रहा है कि ये जो एक्यूमुलेशन जो हुई हुई है ये हमें बेसिकली चेक ये करना है कि जो ब्लड है वो इस करोनरी से कैसे पास कर रहा है. तो ये हमें बताएगा कि या तो अगर हमारा वॉल शेयर स्ट्रेस हाई हो तो क्या है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर कम हो तो क्या हमें उससे फ़ायदा मिलेगा. जब वॉल शेयर स्ट्रेस जब बढ़ता है तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि जब ब्लड फ्लो का जो सर्कुलेशन है वो फास्ट है तो उसमें आपके पास आर्टरी वॉल्स के जो सेल्स हैं वो करोड होके बाहर निकलते हैं एंड दे गेट accumulated in the some other parts of the artery. तो उससे भी हमारे पास स्टेनोसिस जो है वो बनती है. वॉशर स्ट्रेस जब लो हो तो उसमें ब्लड जब स्लो पास ऑन करता है तो ब्लड के कंपोनेंट्स भी एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उससे भी हमारे पास स्टेनोसिस. तो आइदर वे इट्स तो दोनों में ही मतलब मसले हैं, दोनों में ही हमारे पास एक्यूमुलेशंस आ रही हैं. तो हम इस चीज़ को विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग इसको मॉडल करने की कोशिश कर रहे हैं. एक्सप्लोरेटरी वर्क हमारा बेसिकली ये है कि एज वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स तो हमें मशीन लर्निंग का इतना आइडिया नहीं था, बट वी वांटेड टू लर्न इट. सो हमने सीखने के लिए हमने बहुत से एल्गोरिदम्स अप्लाई किए थे, सीखे थे, बट हमने जो 3 मेन एल्गोस लगाए हैं फॉर द कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर, वो हमने पहला है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन एंड रैंडम फॉरेस्ट. अब ये 3 एल्गोरिदम्स हमारे पास जो हैं वो ये मशीन लर्निंग के सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं. ये तीनों क्लासिफिकेशन डेटा सेट्स के लिए इस्तेमाल होती हैं. क्लासिफिकेशन डेटा सेट्स का मतलब ये कि हमारे पास अगर कैटेगरीज हैं लाइक 0, 1, येस और नो, तो हमने जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर डेटा जो इस्तेमाल किया हुआ है उसमें जो हमारा जो टारगेट वेरिएबल है दैट्स 0 and 1. 0 indicates that कि अगर पेशेंट को रिस्क फैक्टर नहीं है, 1 indicates that कि पेशेंट को रिस्क फैक्टर है. तो विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दीज एल्गोरिदम्स हमने ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश की है. लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेसिकली एक ऐसा एक एल्गोरिदम है जो कि क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है और इससे हमारे पास बाइनरी आउटकम्स मिलते हैं. तो इसके फ़ायदे और नुकसान बेसिकली क्या है कि इसके प्रोज ये हैं कि ये इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड. सेकेंड ये कि बहुत ये स्मॉल डेटा सेट्स के लिए बहुत एफिशिएंट है. इसके कौन ये कि ये बाइनरी आउटकम्स तक ही ये लिमिटेड है. So we also have the confusion matrix of our algorithms which explains कि हमारा मॉडल कितना precise और कितना accurate काम कर रहा है. Actual 0 the predicted 0 ये हमें बता रहा है कि actual जो surgeons जो निकाल रहे हैं कि कितने पेशेंट्स रिस्क पे नहीं है, वो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ हैं. एक्चुअल 1 एंड प्रेडिक्टेड 1 ये निकाल रहा है कि सर्जन्स ये निकाल रहे हैं कि कितने पेशेंट्स एक्चुअल रिस्क में हैं, और हमारा जो कंप्यूटर का जो एल्गो है वो ये बता रहा है कि वो अपने एल्गोरिदम्स की मदद से प्रेडिक्ट कर रहा है कि कितने पेशेंट्स रिस्क पे हैं. तो इसमें बेसिकली ये है कि हमने अपने इस एल्गोरिदम्स में डेटा सेट्स में कॉन्सेप्ट बेसिकली ये इस्तेमाल किया हुआ है कि सर्जन्स भी बताएं और एल्गोरिदम भी हमें एक्सप्लेन करे कि हम जो है कि कितनी प्रेडिक्शंस कितने वैल्यूज़ के हमारे पास आ रही हैं कि कितने पेशेंट्स रिस्क पे हैं और कितने नहीं. सपोर्ट वेक्टर मशीन इज़ अगेन द क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम जो कि हम जो भी हमें क्लासीफाई कराता है हमारे डेटा वैल्यूज़ को. इसका बेसिकली ये कि ये हमें सपोर्ट वेक्टर मशीन विद द हेल्प ऑफ मार्जिन जो है वो क्लासिफिकेशन करवाता है. मार्जिन जो है वो हमें मैक्सिमाइज करनी पड़ती है सपोर्ट वेक्टर में ताकि हमारे पास क्लासिफिकेशन बेहतर से बेहतर आ सके. इसके जो फ़ायदे और नुकसान हैं वो ये कि इट्स गुड फॉर हैंडलिंग लॉट्स ऑफ फीचर्स. बहुत सारे वेरिएबल्स को ये अगर एक साथ अगर ये हैंडल करे तो वो ये बहुत अच्छा करता है. ये दोनों रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है. रोबस्ट अगेंस्ट ओवरफिटिंग, ये ओवरफिटिंग होने नहीं देता. इसके जो नुकसान हैं वो ये कि ये ट्रेन होने के लिए ये काफ़ी टाइम लेता है, और जो इसके और सेकंड है वो ये कि ये लार्ज डेटा सेट्स के लिए ये इतना एफिशिएंट नहीं है. अभी आप यहाँ पे अभी हमें ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी मिल रहा है सपोर्ट वेक्टर मशीन का. ये भी हमें ये बता रहा है. अब
इसमें फ़र्क बेसिकली इन तीनों एल्गोरिथम्स में, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में फ़र्क ये है कि हर एल्गोरिथम अपनी वर्किंग के हिसाब से हमें प्रेडिक्शंस बता रहा है कि कितने पेशेंट रिस्क पे हैं और कितने नहीं हैं. सेम इज़ अ केस विद द रैंडम फॉरेस्ट. दिस इज़ ऑल्सो अगेन दी सुपरवाइज्ड लर्निंग क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स, जो कि हमें बेसिकली एक इंसेंबल लर्निंग मेथड बताता है. इसमें बेसिकली डिसीजन ट्रीज़ बनते हैं जो कि मज़ीद हमें फर्दर अच्छी प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल हम करते हैं. इसके फ़ायदे और नुकसानात ये हैं कि ये इट स्पेसिफाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच फीचर्स इन द डेटा. आपके डेटा सेट्स में जितने भी फीचर्स हैं ये उसको बहुत अच्छे से इसको ना मतलब इसको स्पेसिफाई करता है. हैंडल्स बोथ न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल डेटा. हमारे डेटा सेट्स में जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर डेटा है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी हैं, उसमें कैटेगोरिकल भी हैं. तो बेसिकली हम अब रैंडम फॉरेस्ट का एक अच्छा जो फ़ायदा है वो ये कि ये कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल दोनों फीचर्स को बहुत अच्छे से हैंडल करता है. उसके बाद अब हमने जब अपने एल्गोरिथम्स को अप्लाई जब कर दिया तो हमें एंड पे रिजल्ट्स ये शो हुए कि जब हमने इनका कंपैरिजन शो किया तो रैंडम फॉरेस्ट वाज द वन जो कि हमें बहुत अच्छी प्रेडिक्शन हमें दे रहा था. सो येस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. अच्छा, वी आल्सो हैव द कोड विद अस जो कि हम आपको यहाँ पे भी दिखा सकते हैं. ये हमारा ये सारी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ये हैं. वी हैव दी आईडी, वी हैव द सेक्स, एज, एजुकेशन, ये सारे डेटा के वेरिएबल्स हैं. उसके बाद वी हैव इंपोर्टेड दी लाइब्रेरीज एज वेल. पांडास, मिसिंगो, वी हैव इंपोर्टेड दी ट्री, वी हैव नमपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, साइकिट लर्न. हमने ये सारी जो है वो ये हमने इंपोर्ट कर दी हैं. ये आप देख लें कि सारी हमारी ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो चुकी हैं. उसके बाद हमने अपने डेटा सेट्स को रीड करने के लिए कि क्या हमें वो शो करवा रहे हैं, हमने पाइथन की एक कमांड को अप्लाई करके अपने डेटा सेट्स की कुछ वैल्यूज़ को हमने शो करा दिया है. ये देखें, जैसे स्टार्ट से 0 to 4 ये बता रहा है, फिर हमें बिल्कुल लास्ट वाली वैल्यूज़ हमें ये बता रहा है कि ये ऐसे शो हो रही हैं. हमारे पास हमारे डेटा सेट में कैटेगोरिकल वैल्यूज़ भी हैं, न्यूमेरिकल भी है. नेक्स्ट है वी हैव द डेटा प्री प्रोसेसिंग पार्ट. उसमें बेसिकली ये है कि हम इसमें ये चेक करते हैं कि कोई अगर मिसिंग वैल्यूज़ है, कोई नल वैल्यूज़ हैं तो उसको रिमूव कर दें. तो हमने वो भी अप्लाई हमने इस पर कर दिया है. डेटा इन्फो का मतलब ये कि हम अपने डेटा सेट में ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा डेटा सेट हमें इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड कर रहा है. इन्फॉर्मेशन ये कर रहा है कि हमारे डेटा सेट में कोई नल वैल्यूज़ नहीं है और डेटा की टाइप्स क्या हैं. जैसे int 64 ये हमें इस तरह की फ्लोट है, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. df.head, df.tail का मतलब ये कि हमारे डेटा सेट में पहली 5 जो वैल्यूज़ पहली 5 जो हैं वो हेड वैल्यूज़ हैं, पहली 4 जो है वो, लास्ट जो 4 हैं वो टेल वैल्यूज़ हैं. डिस्क्राइब भी यही शो कर रहा है कि ये स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है कि हमारे हर आईडीज़ में काउंट कितना है, यूनिक क्या है. सो ये हमारी सारी आईडीज़ को शो कर रहा है. उसके बाद हम चेक करना चाह रहे थे कि हमारे डेटा सेट में कोई मिसिंग वैल्यूज़ हैं या नहीं. तो हमारे डेटा सेट की अच्छी बात ये थी कि इसमें मिसिंग वैल्यूज़ हमारे पास कोई नहीं आ रही थी. हमने इनको सम अप भी करने की कोशिश की तो सम भी आप ये देख लें कि हमारे आईडीज़ में कोई मिसिंग वैल्यूज़ नहीं आ रही थी. तो अब ये हमारा सारा ये कोड है. वी हैव अप्लाइड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. तो ये कोरिलेशन मैट्रिक्स है हमारे पास. अब हम कैटेगोरिकल को विजुअलाइज करवा रहे हैं. उसके बाद ये देखें, ये ऐसे विजुअलाइज हो रहा है. उसके बाद वी आर विजुअलाइजिंग द न्यूमेरिकल फीचर्स ऐसे. उसके बाद हम आउटलायर्स को चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास कुछ आउटलायर्स भी आ रहे थे. यहाँ पे देखें, ये ऐसे हमारे पास थोड़े बहुत आउटलायर्स भी थे. अब हम यहाँ पे अपने एल्गोरिदम्स को अप्लाई कर रहे हैं. एल्गोरिदम्स की एक्यूरेसीज़ को चेक कर रहे हैं, उनके ट्रेनिंग टेस्टिंग कर रहे हैं. उनसे हमारे पास ये देखें, ये इस टाइप के रिजल्ट हम इतनी वैल्यूज अगर अप्लाई करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं. एक्यूरेसी इन ट्रेनिंग, एक्यूरेसी इन टेस्टिंग. दैन वी हैव दी ROC कर्व जो कि हमें ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव वैल्यूज़ भी बता रहा है. इसी तरह से कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और सारे एल्गोरिदम को अप्लाई कर रहे हैं. ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू. सो जब हमने ये सारा काम कर लिया तो व्हाट वी रियलाइज वाज कि हमारा डेटा कैटेगोरिकल था. उसमें येस नो के आंसर्स थे, नंबर्स थे. बट फॉर आवर ओरिजिनल प्रॉब्लम व्हाट वी नीड इज़ फ्लो का डेटा, कि हम कोऑर्डिनेट्स हों, वहाँ पे वेलोसिटी और प्रेशर के मेजरमेंट्स आएँ. सो
what we need is for there to be some equation to model the system, क्योंकि हमारा मॉडल जो है दैट इज़ फिजिकल इन नेचर, राइट? और फ्लोज को मॉडल करने के लिए वी नो दैट नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस यूज़ होती हैं. तो we wanted to incorporate Navier-Stokes equations into our model somehow. So what we did was, where we began, we took a simple neural network, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स काफ़ी मैनेजेबल होते हैं, उनको आप जिस तरह चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं. यू कैन कनेक्ट एनी न्यूरॉन टू एनी न्यूरॉन. हमने फुली कनेक्टेड किया है, सबको कनेक्ट किया, बट यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, however your problem requires, right? So न्यूरल नेटवर्क हमने लिया. उसके अंदर नॉर्मली क्या होता है कि आप इनपुट डालते हो कोऑर्डिनेट्स की, और आपको वेलोसिटी फील्ड और प्रेशर फील्ड मिलती है. इन जो आउटपुट्स होते हैं आपके, वो आप माइनस करते हो, जो ट्रेनिंग डेटा है उसके आउटपुट से आप माइनस करते हो, तो आपको लॉसेस मिलते हैं. लॉसेस को आपने मिनिमाइज़ करना है एज मच एज़ पॉसिबल. तो यहाँ पे हम अपना डेटा का लॉस मिनिमाइज़ करें, जहाँ पे हम ट्रेनिंग का जो डेटा है we're माइनसिंग इट फ्रॉम द टेस्टिंग का डेटा, ताकि हमारा लॉस मिल जाए, हम उसको मिनिमाइज़ कर सकें उसके बाद. However, we realized another thing. जब आप न्यूरल नेटवर्क बनाते हो ना, तो आप एनवायरनमेंट यूज़ करते हो पाईटॉर्च की या फिर टेंसरफ्लो की. उसकी एक ख़ासियत हमें समझ आई कि वो ना आपके जो आउटपुट्स हैं उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर सकती है. सो यू बेसिकली आस्क इट टू कैलकुलेट द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल योर आउटपुट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑल योर इनपुट्स. और होता ये है कि सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स आ जाते हैं. अब एज वी रिकॉल के गवर्निंग इक्वेशंस में सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो पार्शियल डेरिवेटिव्स के ही हैं. So what we can do is we take these partial derivatives, input them into our governing equations, and that is another loss that we can use. इसको हम minimize करेंगे तो हमारे जो physical laws हैं उसके अंदर आ जाएगा हमारा system. What that will do is कि आपकी momentum conservation, mass conservation को violate नहीं करेगा आपका system, and that is a huge thing. So much so that हमारे पेपर में उन्होंने क्लेम किया था कि आप जब ये करते हो तो आपको बाउंड्री कंडीशंस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती. नाउ वी वर स्केप्टिकल ऑफ दैट, सो वी वांटेड टू टेस्ट दैट आउट. सो हमने अपने जो एल्गोरिथम रन किए हैं उसके अंदर हमने बाउंड्री कंडीशंस अननोन रखी हैं, ताकि हमें पता चले कि इसको जब हम कंपेयर करेंगे नॉर्मल रिज़ल्ट से तो उसमें कितना फ़र्क आ रहा है. क्या बाउंड्री कंडीशन ऐड करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्या पड़ेगा फ़र्क, वो हम उसको गेज करना चाह रहे हैं. तो ये सारा हमने रन किया कोड, उसके टेस्टिंग के रिज़ल्ट्स ये आए हैं. अब दीज आर जस्ट द आइट्रेशंस. हमने 750 आइट्रेशंस किए हैं. अब हमारा जो विजुअलाइजेशन का पार्ट है वो रहता है. तो हमारे फ्यूचर गोल्स में हम ये चाह रहे हैं कि हम अपना जो आंसर्स हैं उनको विजुअलाइज़ कर सकें, ताकि अगर हम CFD अप्लाई करते हैं जो कि कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स है, जो नॉर्मली यूज़ होती है इस तरह की चीज़ें मॉडल करने के लिए, वो अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं अपने रिज़ल्ट्स को. तो दैट वुड बी आवर फाइनल गोल एंड आई होप वी रीच देयर. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मैमूना है BS मैथ्स से, और मेरे जो सुपरवाइज़र हैं डॉक्टर मतलूब अनवर, और मेरा टॉपिक रिलेटेड है मॉड्यूल थ्योरी के और इनवेरिएंट बेसिस नंबर प्रॉपर्टी. अच्छा, हमने लीनियर अलजेब्रा में पहले वेक्टर स्पेसेस पढ़ी हैं और उन पर इनवेरिएंट बेसिस नंबर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा बेसिकली यहाँ पे RN हमने वेक्टर स्पेसेस पढ़ी थी और उस पे हमने पढ़ी है इनवेरिएंट बेसिस नंबर प्रॉपर्टी विच सेज दैट कि अगर दो वेक्टर स्पेसेस आइसोमॉर्फिक हैं तो उनकी जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस होंगे वो इक्वल होंगे. लेकिन अगर हम इनकी जगह वेक्टर स्पेसेस की जगह मॉड्यूल्स ले लें तो हमारे पास क्या होगा. यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अगर हम स्केलर मल्टीपल हम रिंग से लें इंस्टेड ऑफ फील्ड, क्योंकि हम जब स्केलर मल्टीपल फील्ड से लेते हैं तो हमारे पास वेक्टर स्पेस बनती है, लेकिन अगर हम रिंग से लें तो हमारे पास मॉड्यूल्स बनते हैं. वही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. अगर यहाँ पे हमारे पास रिंग से लेते हैं हम
तो हमारे पास इनवेरिएंट बेसिस नंबर प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने वो चेक करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है। मेथोडोलॉजी में हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, बेसिस के, आइसोमॉर्फिज्म के, मॉड्यूल्स और ट्रेस फंक्शन, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। रिजल्ट्स में आ जाता है हमारे पास, रिजल्ट्स में हमारे पास सबसे पहले एक एग्जांपल आती है जिसमें हम एक लीनियर मैपिंग बताते हैं जो हमारे पास आगे जाके यूज़ होगी। यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, हम बेसिकली यहाँ पे जनरलाइज प्रूव नहीं कर सकते मॉड्यूल्स के लिए। जैसे वेक्टर स्पेसेस के लिए जनरलाइज होता है ना कि कोई भी आप वेक्टर स्पेसेस ले लें, अगर वो आइसोमॉर्फिक है तो उनकी बेसिस इक्वल होंगी, नंबर ऑफ बेसिस। जहाँ पर हम स्पेसिफिक एग्जांपल लेंगे, जैसे यहाँ पे वेक्टर, यहाँ पे हम मैट्रिक स्पेस की मैट्रिक रिंग्स की ले रहे हैं एग्जांपल। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 में ए अगर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइटली मैनी मैट्रिसेस होंगी, और उसको हम ए आर से ले रहे हैं और उसको हम दो चीज़ों में डिवाइड कर देंगे, ए ऑड और ए इवन। ए ऑड वो होगा कि हम ए में से सारे ऑड कॉलम्स को निकाल के ए ऑड में डालेंगे, और ए इवन ये है कि ए के सारे इवन कॉलम्स ए इवन में डालेंगे। अब हम मैप करवाएंगे ए को ए ऑड और ए इवन पे, तो ये आर है और ये आर स्क्वायर बन गया हमारे पास। आर को लीनियर मैपिंग करवाएंगे आर स्क्वायर पे, और सो ऑन अगर हम ए को चेंज कर दें, ए और बी ला दें, आर स्क्वायर बना दें, यहाँ पे भी ए ऑड ए इवन और बी आ जाएगा और वो आर क्यूब बन जाएगा। ये जो हमने लीनियर मैपिंग की है ये हमारे पास आगे यूज़ होगी। थ्योरम नंबर 2 बेसिकली हमारे पास मेन रिजल्ट है विच सेज दैट कि हमारे पास जो आर एम इज़ आइसोमॉर्फिक टू आर एन इफ़ एंड ओनली इफ़ एम इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एन मॉड के। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर एम इज़ नॉट इक्वल टू एन, जो हम वेक्टर स्पेसेस में देखते हैं, हमारे पास ये एक रिज़ल्ट आता है जो हमने प्रूव करना है। और ये हम डायरेक्टली प्रूव नहीं करेंगे, यहाँ पर हम थ्योरम नंबर 5 को यूज़ करके प्रूव करेंगे, विच इज़ टोटली सेम एक्सेप्ट दिस के, आर के आ रहे हैं यहाँ पे आर की जगह। अब आर के क्या होता है, ये डेफिनेशन नंबर 3 में अगर हम देखेंगे, आर के हम सबसेट लेते हैं आर का, जो कि उन तमाम मैट्रिसेस, वो तमाम मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर के, जिनके अंदर स्केलर मैट्रिसेस आएंगी। यहाँ पर जो हम मैट्रिक्स ले रहे हैं उसके अंदर भी आप देखें तो ये मैट्रिसेस बन रही हैं, उनकी एंट्रीज भी इनफाइनाइटली मैनी मैट्रिसेस हैं। मैट्रिसेस तो इनफाइनाइट हैं, लेकिन जो नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस होंगी वो फाइनाइट ही होंगी, इसीलिए हमें उनको सॉल्व करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट वी हैव कि अगर हमारे पास ये हमने आर के ले लिया, उसके बाद लेमा 4 है विच सेज दैट इफ़ एम इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एन मोड के देन आर के एम इज़ आइसोमॉर्फिक टू आर के एन, विच इज़ वन साइड ऑफ थ्योरम नंबर 5 जो हमने प्रूव करना है। इसको हमने प्रूव करना है एग्जांपल नंबर 1 के थ्रू, जो हमने ये रिजल्ट बनाया एग्जांपल नंबर 1 में, दैट आर के इज़ आइसोमॉर्फिक टू आर के की पावर के प्लस 1। ये हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि कैसे बनाया था हमने। ये ए को हमने मैप करवाया था ए ऑड और ए इवन पे डिवाइड करके। अब यहाँ पे हम एक ये फार्मूला दे रहे हैं ए को डिवाइड करने के। हम यहाँ पे के को चेंज करते जाएंगे, हमारे पास एज डिफरेंट आते जाएंगे और उसको मैप करते जाएंगे। ए मैप करेगा A1 टू अप टू के प्लस 1। फॉर एग्जांपल हम के इज इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो यहाँ के A1 और A2 आएगा, जो कि हमारे पास ऊपर जो एग्जांपल नंबर 1 में देखा था ए ऑड और ए इवन, वो सेम बनेगी। यहाँ पे K1 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये जो कॉलम्स आएंगे ये ऑड और इवन बनेंगे। फार्मूला अगर हम K पुट करेंगे 1 तो हमारे पास ये चीज़ें बनती जाएंगी। सेकेंडली हम इसको यूज़ करके हमने प्रूव करना है कि आर के एम इज़ आइसोमॉर्फिक टू आर के एम। उसके बाद थ्योरम नंबर 5 की सेकंड जो साइड है उसको प्रूव करने के लिए ट्रेस फंक्शन चाहिए होगा, और ट्रेस फंक्शन को हम यहाँ पे 3 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स इनफाइनाइट ऑर्डर किया और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो भी मैट्रिसेस हैं। तो इसकी वजह से हम सबसे पहले ये जो हमारे पास ब्लॉक्स से छोटे के क्रॉस के पहले इनका ट्रेस लेंगे। उनका ट्रेस लेने के लिए हम स्मॉल टी के ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मॉड के, क्योंकि हम ले रहे हैं टी के जेड ओवर के जेड, और ये जो रिंग होती है वो आइसोमॉर्फिक होती है जेड के मॉड्यूल वाली जो रिंग होती है। तो यहाँ पर मॉड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें इसका जो ट्रेस होगा सारी मैट्रिसेस का वो C इंटू आई के आएगा। स्केलर मैट्रिसेस थी, C इंटू आई के की फॉर्म में इनका ट्रेस आएगा। आई के का अगर हम ट्रेस लें तो वो के इक्वल आएगा, क्योंकि के क्रॉस के की मैट्रिक्स है। अब C इंटू के का एनी मल्टीपल विद रिस्पेक्ट टू मॉड के इक्वल टू 0 आता है। तो हमारे पास ये जितनी भी के क्रॉस के की मैट्रिसेस होंगी डायगोनल में वो सारी 0 हो जाती हैं, उनका ट्रेस 0 हो जाता है। अब जो कैपिटल T है वो ट्रेस है हमारे पास इस पूरी मैट्रिक्स का। अब इस पूरी मैट्रिक्स में इन सब का ट्रेस हमें पता है, सिर्फ 1 क्रॉस 1 का ट्रेस नहीं पता, तो इसका ट्रेस 1 होता है।
इन सबको हम ऐड करेंगे तो इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रेस हमारे पास 1 आ जाएगा, बिकॉज ऑल अदर टर्म्स आर 0। एंड पे हमारे पास जो ट्रेस है वो है टॉ। इसको हम कह रहे हैं कि आर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको ऐड अप करेंगे तो आर के तमाम जो ट्रेस होगा वो आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आर के एम लेते हैं हम, उसमें कितनी एम टर्म्स होंगी, एम टर्म्स का जो ट्रेस होगा वो सबका 1 1 1 आएगा, तो एम टाइम्स 1 ऐड करेंगे तो एम आएगा। इसी तरह अगर आर एन का लेंगे तो उसका जो ट्रेस होगा वो एन आएगा। लेकिन यहाँ पे आर एम इज़ इक्वल्स टू एन नहीं है, एम इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एन मॉड्यूलो के होगा, बिकॉज ऑफ दिस मॉड्यूल के हमने शुरू से के मॉड्यूल लेते आए हैं। उसके बाद हमारे पास ये हमने मैट्रिक्स स्पेस के लिए प्रूव किया। अब हमारे पास है दूसरी रिंग एल क्यू विच इज़ अ क्वोशंट रिंग। इसको भी हम बेसिकली इसी तरह यूज़ करेंगे और इसमें जो मेन चीज़ होगी वो हमने देखनी है दैट आर इज़ आइसोमॉर्फिक टू आर क्यू इफ़ एंड ओनली इफ़ LQ is homomorphic to R. Assalamu alaikum. I am Anmol Faz and my group member is Nizalia Siddiqui. So our final year project is comparative analysis of the definition of the fractional calculus operator, and we did this under the supervision of Dr. Mujibur Rahman. So usually हम लोग start से derivatives लेते हैं इंटीजर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सही है, लेबनीज़ ने जो ये वाली नोटेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी जो कि हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं, बट लॉपिटल रिप्लाइड दैट व्हाट इफ़ बी n 1/2 या कोई या एनी रियल नंबर, टू विच लेबनीज़ रिप्लाइड दैट इट विल लेड टू अ पैराडॉक्स फ्रॉम विच वन डे यूजफुल कॉन्सिक्वेंसेज विल बी ड्रॉन। सो स्टार्टिंग विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द फ्रैक्शनल कैलकुलस। सो फ्रैक्शनल कैलकुलस इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज़ एज ओल्ड एज classical calculus, and it deals with the differentiation and integration of the arbitrary order. So these are some important definitions of the fractional calculus that we have used in our final year project. ये हमारे पास RL fractional integral और RL fractional derivative है. This is the Caputo differential operator, and similarly ये भी कुछ definitions हैं, right? These are different lemmas that we have studied. यहाँ पे we can say that RL fractional derivative is the left inverse of the RL fractional integral. Similarly, this is the relation for Caputo fractional derivative, and यहाँ से we can conclude that Caputo fractional derivative is not the right inverse of the Caputo fractional integral. This lemma is basically the relation between Caputo fractional derivative and RL fractional derivative. This is the extra term appearing, and if we take if we have kth order derivative 0, then we get Caputo derivative and RL derivative equal, right? अब different operators हैं हमारे पास. अब हर ऑपरेटर को तो हम फ्रैक्शनल कैलकुलस ऑपरेटर नहीं कह सकते, तो उनके लिए उनको कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज का सेटिस्फाई करना ज़रूरी है. सो एन ऑपरेटर इज़ कंसिडर्ड एज फ्रैक्शनल डेरिवेटिव इन वाइड सेंस क्राइटेरिया इफ इट सेटिस्फाइज दीज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, दैट इट शुड बी लीनियर, द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी शुड बी सेटिस्फाइड, द बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी दैट व्हेन द ऑर्डर इज एन इंटीजर द फ्रैक्शनल डेरिवेटिव गिव्स द सेम डेरिवेटिव एज द इंटीजर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव. उसके बाद इंडेक्स लॉ होल्ड करेगा बट फॉर अल्फा लेस देन 0 एंड बीटा लेस देन 0, और जनरलाइज लेबनीज़ रूल भी उस ऑपरेटर को सेटिस्फाई करना चाहिए. देन वी हैव द स्ट्रिक्ट सेंस क्राइटेरिया. स्ट्रिक्ट सेंस क्राइटेरिया में हमारे पास बाकी सारी चीज़ें तो सेम रहेंगी, बट जो ये वाली कंडीशन है इसको हम स्ट्रिक्ट कर देंगे फॉर एनी अल्फा एंड बीटा. अब जो बाकी डेफिनेशंस हमने स्टडी की हैं वो तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करती हैं, बट दिस इज़ कन्फर्मेबल फ्रैक्शनल डेरिवेटिव, ये एक डेफिनेशन हमने स्टडी की है. इस पर हमने जब ये क्राइटेरियाज अप्लाई किए हैं तो इट डजंट satisfy the criteria for the fractional derivative, so this is not the fractional derivative. So these are some applications for the fractional calculus, that is the Tautog-Cronus problem, electric transmission lines, electrosonic wave propagation, और viscovelocity में अगर हमने रिलेशन जहाँ पे हम लोग फ्लूइड और सॉलिड दोनों यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे हमारे पास ये viscovelocity में यूज़ हो रही होती है. इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस में कुछ टेम्परेचर हीट और टेम्परेचर की कुछ इक्वेशंस बन रही होती हैं, वहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शनल डेरिवेटिव और इंटीग्रल अपीयर हो रहे होते हैं. नाउ कमिंग टू द ग्राफ. तो जैसे ये वेरिएबल ऑर्डर के लिए भी होता है, अभी तक कांस्टेंट ऑर्डर का अनमोल ने बताया था, पर वेरिएबल ऑर्डर के लिए भी सेम डेफिनेशंस एक्सटेंड हो सकती हैं. यहाँ पे जैसे अल्फ़ा लिखा हुआ है तो इंस्टेड ऑफ अल्फ़ा हम कोई भी वेरिएबल फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ा टी अल्फ़ा एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है. सेम डेफिनेशन से होल्ड करती हैं. एंड इसके अलावा फिर हमारे पास से कुछ यूजफुल रिजल्ट्स आ जाते हैं. एफ ऑफ टी हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है देयर ऑफ द फॉर्म टी माइनस ए बार बीटा, तो ये कुछ नोन रिजल्ट्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं टू ईजिली इवैल्यूएट द वैल्यूज़.
तो ये वाली जो ग्राफ हमने बनाया है ये हमने कांस्टेंट ऑर्डर के लिए बनाया है। इसमें हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, पर हमने इसमें जो ऑर्डर रखा है वो बिटवीन 0 and 1 ही रखा है फॉर बोथ डिफरेंट डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल। तो येलो वाला पार्ट है ये हमारा इंटीग्रल का है एंड ये ब्लू वाला डेरिवेटिव का है। इसको चेक करने के लिए जो एक सिंपल सी बात है वो ये है कि अगर आप टी स्क्वायर का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो 2t आता है। तो ये वाली जो हमारी लाइन है ये सिंपली 2t की लाइन आती है एंड सेम वैल्यूज़ हम थ्रू आउट ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन एक प्लॉट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इन वाले ग्राफ्स पे आ जाए तो ये हमारे वेरिएबल ऑर्डर के ग्राफ्स हैं। इसमें हमने बेसिकली 3 ऑर्डर्स के लिए प्लॉट किया है। फंक्शन हमारा टी स्क्वायर ही है थ्रू आउट, बट हमने इसको वेरिएबल ऑर्डर रखा हुआ है। जो रेड वाली लाइन हमारी टी की ऑर्डर टी की है, ब्लू वाली लाइन टी स्क्वायर की है एंड ग्रीन वाली लाइन टी क्यूब की है। ये हमारे इंटीग्रल का ग्राफ है एंड देन ये दोनों हमारे, जैसा अनमोल ने बताया था, हमारे पास 2 डेफिनेशन है, कैपुटो और आरएल। तो ये आरएल का ग्राफ है एंड ये कैपुटो का ग्राफ है एंड फर्स्ट लुक में ये सेम ही लगते हैं एंड लॉजिकली दे शुड बी द सेम, बिकॉज अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करें तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं आनी चाहिए वैल्यूज़ में, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है जो कि इस टर्म की वजह से आ रहा होता है हमारे पास। एंड देन हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कांस्टेंट ऑर्डर के लिए सेटिस्फाई करती हैं, बट वेरिएबल ऑर्डर के लिए जैसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, इसका हमने छोटा सा एक प्रूफ भी दिया हुआ है, वो नहीं होल्ड करता। एंड ये रिलेशनशिप तब होल्ड करता है व्हेन बीटा इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। एंड इसके अलावा जो आर एल डेरिवेटिव है वो लेफ्ट इन्वर्स नहीं होता ऑफ द आर एल इंटीग्रल। एंड ये वाला जो हमारे पास रिजल्ट है ये हमने खुद प्रूव किया। ये हेडमर्ड मार्शवर्थ डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी, हमने इसको उसी डेफिनेशन को हमने एक्सटेंड किया था फॉर हेडमर्ड टाइप मार्शवर्थ डेरिवेटिव। एंड इसको हम चेक कर सकते हैं कि हमारी डेफिनेशन सही है, बिकॉज हमने ऊपर ये बताया था कि जो हेडमर्ड टाइप डेफिनेशन है वो जनरलाइज फॉर्म होती है हेडमर्ड की। इसमें अगर हम सी को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास वापस हेडमर्ड की डेफिनेशन आ जाती है। एंड सिमिलरली ये जो है ये रिलेशन है बिटवीन हेडमर्ड टाइप एंड हेडमर्ड टाइप मार्शवर्थ डेरिवेटिव। ये वाला हमारा मार्शवर्थ डेरिवेटिव, ये वाला मार्शवर्थ डेरिवेटिव है यानी हेडमर्ड टाइप। तो ये रिलेशन हम बता सकते हैं। Alright. Assalamualaikum. My name is Osama bin Hafiz and I am a BS Math final year student of SNS. My field of research was differential equations, specifically partial differential equations. मैंने काम किया है अपने सुपरवाइजर डॉक्टर अहमद जावेद के साथ. He's helped me a lot throughout the entire process. So नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर एक सब फील्ड होती है आपके पास सॉल्यूटॉन थ्योरी. सॉल्यूटॉन थ्योरी क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन व्हाट सॉल्यूटॉन इटसेल्फ इज. अ सॉल्यूटॉन इटसेल्फ इज अ वेव फिनोमेना जो अपनी शेप, अपनी स्पीड और अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन रखता है ओवर इनफिनिट डिस्टेंसेस. तो एसेंशियली आपके पास पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जो भी इंफॉर्मेशन है वो विद लिटिल टू नो डिग्रेडेशन आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा सकते हैं. दैट इज़ व्हाट अ सॉल्यूटॉन इज. अब सॉल्यूटॉन जनरेट करने के लिए स्पेसिफिक नॉन लीनियर partial differential equations के आपके exact solutions चाहिए होते हैं. The one I have been working with is the Korteweg-de Vries equation, which is written as u of t, u partial differential with respect to t, plus a u ux plus u triple x equals to 0. The u ux over here is the non-linear term and the u triple x over here is the dispersion effect term. Both of these terms are so balanced out with each other कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है, जिसकी वजह से इस स्पेसिफिक इक्वेशन के जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो सॉल्यूटॉन्स जनरेट करते हैं जो इनफिनिट डिस्टेंसेस तक ट्रैवल कर सकते हैं. अब कोर्टेवेग-de Vries इक्वेशन को के एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करने की मल्टीपल मेथोडोलॉजीज हैं. देयर इज़ द एनालिटिकल मेथोडोलॉजी इटसेल्फ जो कि मेरे पहले रेफरेंस के अंदर क्लाउस वर्ल्ड के 2000 के पेपर के अंदर आप फाइंड कर सकते हैं. एंड देयर आर मल्टीपल मेथोडोलॉजीज अदर एज वेल. The one I have been working with is the Hirota bilinear method. What it does is essentially take the non-linear partial differential equation itself, उसको एक bilinear form के अंदर convert कर देता है using the differential operators and an auxiliary function. और जब वो एक linear form के अंदर convert हो जाती है आगे उसको solve करने में हमें ज़्यादा आसानी हो जाती है. तो इसकी एक एक्सटेंशन ये कि मैंने ये एक pseudocode डेवलप किया है. This pseudocode itself takes the Hirota bilinear method for the Korteweg-de Vries equation और उसके हमें exact solutions के graphical animation present करता है. The sixth step over here, the solve the bilinear differential equation, ये essentially जो exact solution generate होगा इस कोड से from step 1 to 5 उसको इस equation में put करता है और इसके check करता है कि if the equation is being satisfied itself or not.
तो दीज आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस फॉर द मल्टीपल सॉल्यूटॉन्स जो कि मैंने अपने कोर्स से जनरेट करवाई हैं. दिस इज़ अ सिंगुलर सॉल्यूटॉन, 2 सॉल्यूटॉन एंड 3 सॉल्यूटॉन. तो 1 सॉल्यूटॉन के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोपगेशन हमें नज़र आती है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के अंदर ये अपनी शेप इंटेग्रिटी मेंटेन रखता है. व्हाट अबाउट द 2 एंड 3 सॉल्यूटॉन्स, इसके अंदर तो स्पीड वेरिएंट आ जाता है. एट सम पॉइंट दीज डेज आर बाउंड टू कोलाइड. तो सॉल्यूटॉन की एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये है कि आफ्टर कोलिजन द सॉल्यूटॉन स्टिल मेंटेन्स इट्स शेप एंड इंटेग्रिटी, और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होकर सिर्फ फेस शिफ्ट एक इंट्रोड्यूस होते हैं. इनके अंदर बाकी द इन्फॉर्मेशन इटसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फेस शिफ्ट द इन्फॉर्मेशन इटसेल्फ इज मेंटेन. अब फॉर नाउ मैंने अपना काम क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ही किया है. इन द फ्यूचर आई वांट टू यूज़ माय कोड एंड वर्क विद द मल्टीपल एक्सटेंशंस ऑफ द KDV itself, such as the modified quadratic differential equation, the generalized quadratic differential equation, third order families of the KDV equation. मैं उन सब के अंदर हेरोटा बाई ने मैथमेटिकल कोड को इम्प्लीमेंट करके आगे मैथमेटिकल कंप्यूटेशन प्रेजेंट करना चाहता हूँ, ताकि फर्दर आगे जब मैथमेटिशियंस को सॉल्यूटॉन की इम्प्लीमेंटेशन वगैरह या ग्राफिकल एनिमेशन वगैरह चाहिए हो तो वो मेरा कोड इस्तेमाल कर सकें. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम बासम सुरराज है एंड मेरे एडवाइज़र का नाम है सर डॉक्टर मोहम्मद इसाक साहब. एंड मेरे FIP का टाइटल है अ नोवेल इमेज एन्क्रिप्शन टेक्निक बेस्ड ऑन मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन. अच्छा, मेरा ना थ्रू आउट दिस होल स्टडी जो फील्ड रही है वो क्रिप्टोग्राफी रही है, द होल आर्ट ऑफ सेंडिंग सीक्रेट मैसेजेस. एंड उसमें जो मेरी पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी रही है ना वो है इमेज एन्क्रिप्शन यूजिंग एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एल्गोरिथम जो कि इंडस्ट्री में जनरली कॉमन प्लेस माना जाता है, द AES एल्गोरिथम स्टैंडर्ड, द एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड. एंड अच्छा, अब मेरा जो उसमें रोल था ना, बेसिकली हमारा जो AES सिस्टम है ना वो करता है रिलाई 2 पार्ट्स पे, जो 2 मेन फंडामेंटल पार्ट्स हैं. एक होता है लीनियर पार्ट, एक होता है नॉन लीनियर पार्ट. अब लीनियर पार्ट का ये इशू होता है कि आप लीनियर इक्वेशंस में आपको पता है ना, लाइक अगर आप मल्टीपल इक्वेशंस बना लें, लेट्स से अगर आपका एक अटैकर है जो आपके मैसेजेस एक्सेस करना चाहता है तो वो जो है मल्टीपल मैसेजेस ले लेगा, उनका एक लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बना सकता है एंड देन वो सॉल्व कर लेगा उसको, जिसकी वजह से उसके पास की आ जाएगी, जिससे वो बाकी आपके पोटेंशियली सारा सिस्टम जो है वो कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है. तो उसको अवॉइड करने के लिए ना हम एक नॉन लिनियरिटी का एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि हम करवाते हैं यूजिंग S बॉक्सेस. S बॉक्सेस हमारे बेसिकली होते हैं सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस. जैसे कि हमारा जो मेरा पर्टिकुलर कंसर्न है ना वो है गैलोआ फील्ड थ्योरी के साथ. गैलोआ फील्ड थ्योरी को यूज़ करके एक S बॉक्स कंस्ट्रक्ट करना. हमने क्या किया, बेसिकली हमारे पास जो स्टैंडर्ड गैलोआ फील्ड होती है उसकी जो 2 to 8 जो फील्ड होती है हमारे पास, उसको हमने यूज़ किया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन S बॉक्स. एंड देन हमने एक प्रोजेक्टिव लीनियर ग्रुप उस पर अप्लाई किया जो कि उसको यूजिंग अ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म कर देता है इनटू अ chaotic टाइप ऑफ मैप टाइप थिंग. ठीक है, ये जिसकी ना ये हमने टेबल यूज़ किया था एंड देन हमारे पास ये S बॉक्स कंस्ट्रक्ट हुआ यूजिंग इस मेथड को यूज़ करके हमने जो कंस्ट्रक्ट किया ना. अब इसकी ना प्लस पॉइंट्स ये हैं कि आप जो है ना बेसिकली कोई भी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ करेंगे ना, या जितने भी भला आपके पास सारे मैसेजेस क्यों ना आ जाएँ, सारी सब कुछ क्यों ना आ जाए एक्सेप्ट फॉर द की, आप कभी भी इसको क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि आप कभी इसकी इक्वेशन बना ही नहीं सकेंगे जो आप नियर सर्टेनिटी के साथ सॉल्व कर सकें. अच्छा, अब हमने बेसिकली जो है ना, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन टेबल थी जैसे कि मैंने मेंशन किया. इसको यूज़ करके हम जितने भी हमारे पास डेटा की वैल्यूज़ आएंगी ना इसेंशली वो हम इस फॉर्मूला में पुट करते जाएंगे, इस पॉलिनोमियल में पुट करते जाएंगे. ठीक है, एंड देन यूजिंग दिस टेबल हम उसको ट्रांसफॉर्म करते जाएंगे इनटू आवर एनक्रिप्टेड बिट्स. ठीक है, और जो कि फिर हम आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं. एंड देन फिर हमने मेरे जो पेपर का था वो ये भी मैंने शो किया है कि ये कैसे सुपीरियर है कंपेयर टू अदर जो प्रीवियस मेथड्स रहे हैं उसके एनालिसिस के, क्रिप्टोग्राफिक एनालिसिस के. अच्छा, अब हमारा जो मेन नॉन लिनियरिटी थी ना, उसको एक तो मैंने जो दिया वो काफ़ी इनफॉर्मल सी डेफिनेशन है कि आप लाइक उसको सॉल्व नहीं कर सकते, बट जो एक्चुअल सी डेफिनेशन है ना वो है बेसिकली कि ये उसका एसेंशियली फॉर्मूला है एंड वो डिस्प्ले करती है कि कितना परसेंट चांस है कि आपकी जो इंडिविजुअल सम्स है ना वो कंबाइंड के सम से डिविएट करेंगे. एंड उससे हम फिर ना मेजर कर सकते हैं किसी भी S बॉक्स की नॉन लिनियरिटी. जनरली 120 जो है ना, अगर आपका कोई एल्गोरिथम 120 नॉन लिनियरिटी अचीव कर जाते हैं तो वो एसेंशियली परफेक्ट है. हमारा जो एल्गोरिथम है ना वो 107.3 के उस पर पहुँचा है अभी. प्रीवियस जो है वो 90 100 तक मैक्स ड्रॉप आउट कर गए थे. हमने अराउंड 7 पॉइंट्स इंक्रीज़ किया इन टर्म्स ऑफ एब्सोलूट नॉन लिनियरिटी. तो ये हमारा प्लस पॉइंट रहा है. इसके अलावा हमने स्ट्रिक्ट एवलांच क्राइटेरियन, बिट इंडिपेंडेंस क्राइटेरियन, ये जो वेरियस क्रिप्टोग्राफिक टेस्ट हैं वो भी हमने इस पर अप्लाई किए हैं एंड देन चेक किया है कि इंडीड ये हमारा जो मेथड है ना ये कंपैरेटिवली बेहतर है दैन ऑल प्रीवियस अटैम्प्ट्स जो कि S बॉक्स कंस्ट्रक्शन में यूज़ हुई हैं. अच्छा,
अब हमारा जो एप्लीकेशंस है ना हमारे प्रपोज्ड एक्सबॉक्स की फ्यूचर में, वो हैं अभी के लिए तो फॉर एग्जांपल मैंने जिस पे काम किया ना वो है इमेज इंक्रिप्शन पे। तो फ्यूचर में हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं टूवर्ड्स लाइक वीडियो इंक्रिप्शन, डेटा इंक्रिप्शन, इन जनरल डेटा इंक्रिप्शन की तरफ एक जनरलाइज्ड एल्गोरिथम बन सकता है। हमने जो इम्प्लीमेंटेशन की है ना वो मैटलैब में की है। अच्छा, अब जो पर्टिकुलरली जो मेरे एनवायरनमेंट के साथ कंसर्न है इमेज इंक्रिप्शन के साथ, उसमें हम 5 क्राइटेरियाज लेते हैं: कॉन्ट्रास्ट, कोरिलेशन, एनर्जी, होमोजेनिटी एंड एंट्रोपी। कॉन्ट्रास्ट तो आपको लाइक बाय नेम ही बंदे को पता चल जाता है, एज इन के कितना डार्क एंड ब्राइट में डिफरेंस है, वो सारा कुछ। कोरिलेशन होता है कि आपके पिक्सल्स आपस में कितने क्लोजली अलाइंड है, का डेटा कितने क्लोजली इनकोडेड है। एनर्जी एंड होमोजेनिटी रिप्रेजेंट करते हैं कि पूरी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पिक्सल्स की रेफ़र करते हैं। एंट्रोपी रेफ़र करती है कि कितना डेटा में जो है ना वेरिएशन है। और ये सारा कुछ जो है ना कंबाइन करके जितने ज़्यादा ये चीज़ें इंक्रीज़ करता है ना आपका क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम, तो उतना ज़्यादा वो इम्प्रूवमेंट कंसिडर किया जाता है। अब ये जैसे हमारी जो ओरिजिनल इमेज थी, इसको हमने जब अपने मैटलैब के थ्रू पास किए तो हमारे पास ये इनक्रिप्टेड इमेज आ गई है, एंड ये हमारा फाइनल वो था। ठीक है, एंड इसकी कंक्लूजन यही है कि हम फ्यूचर में, मैं होप करूँ कि इसको एक्सटेंड करूँ टूवर्ड्स अदर फॉर्म्स ऑफ मीडिया एज वेल, एंड पॉसिबली इसकी नॉन लिनियरिटी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ की जा सके। Thank you. First of all, I'd like to thank my supervisor for her immense guidance. I'm simply thankful for her guiding me through this project, and I'm amazed that I've been given the honor of the best project. And Sir Asif was just asking me what advice I would give to a future student, and I would say that you should research into in whatever you're passionate about, and make sure you and whatever and you also have to stick to that thing, right? Whatever thing you select, go through it, but make sure you go through it in its entire complexity. For instance, my project was about topological quantum computing. It's a very recent thing, right? It's about how big companies such as Microsoft, Google, all of them, they're like funding billions into this research, and what they need are mathematicians and physicists. And because this is not something just an engineer can do, it's something that is interdisciplinary trust, right? So whatever thing you're passionate about, I'm sure that has applications in many things. So just go into these applications and make the best research project. प्लान क्या है? क्या करना चाह रहे हैं PhD? For now, my future plan is doing a PhD in mathematics. Currently, I've been selected for this amazing program by ICTP. It's a pre-PhD program. It's a very course-intensive program. It's for 1 year, and after that, I'm hoping to get a PhD admission in like different universities from US or Canada. So that's my future plan. Thank you.